Let's start with the kidney embryology. When we talk about the kidney embryology, we have three basic structures to understand: the pronephros, the mesonephros, and metanephros. Pronephros is the non-functional part which develops at week 4 and then either regresses or degenerates depending on the time of its ending. So once pronephros has regressed, we have mesonephros. Mesonephros takes over as the temporarily functional kidney in the fetal life. It functions as the interim kidney for the first trimester and later contributes to male genital systems. After which we have the permanent kidney, which is the metanephros. Metanephros is permanent. It first appears in fifth week of gestation and continues up till the 36th week of gestation because nephrogenesis itself continues through weeks 32 to 36 week of gestation. Now we have the mesonephric duct, as you can see, it extends from here and all the way up to the caudal end. In the caudal end, we have something developing called the ureteric bud. Now, the ureteric bud is very important because basically it's the metanephric diverticulum that um, appears from the caudal end of the mesonephric duct. But what the ureteric bud does is it basically creates interaction between another structure which is called the metanephric mesenchyme. This interaction between the metanephric mesenchyme and the ureteric bud basically interacts and induces the differentiation of further structures. Now, the further structures start from the glomerulus and end up to the distal convoluted tubule. When I talk about the glomerulus up to the distal convoluted tubule, all the parts of the kidney that come from the glomerulus up to the distal convoluted tubule are included here. So we have the ureteric bud and we have the metanephric mesenchyme. The metanephric mesenchyme is also called as the metanephric blastema. Interaction between these two creates your glomerulus, loop of Henle, proximal convoluted tubule, and distal convoluted tubule. Now let's see a picture here to understand these three structures. So this is the pronephros, which is non-functional, appears at the fourth week of the baby development, the fetal life. And then we go on to the mesonephros, right? This is the temporary functional kidney. And then at the end of the mesonephric duct, you find the ureteric bud developing from the caudal end. Now here you have the metanephros, which is the permanent kidney. This entire cord is the nephrogenic cord, right? Moving on, now, what this says is ureteric bud derived from caudal end of mesonephric duct gives rise to ureter, pelvises, calyces, collecting ducts, and it's fully canalized by 10th week. What is the canalization of something? So, if the ureter is developing, it develops as a solid cord. It develops like a stick. Canalization basically makes it hollow. When something is hollow, it is said to be canalized. Um, the important structure to remember here is that when canalization ends, the last thing to canalize, the last structure to become hollow is the ureteropelvic junction. अब अगर मैं एक स्टिक को पाइप बनाने की कोशिश कर रही हूँ और वो पूरी तरह से पाइप नहीं बना, वो पूरी तरह से हॉलो नहीं हुआ, इट वॉजंट कैनलाइज्ड प्रॉपरली, तो क्या होगा? We'll get a congenital obstruction. So the most common cause of prenatal hydronephrosis is congenital obstruction due to ureteropelvic junction. हम ये कैसे देखते हैं? हम बेबी में देखते हैं प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड में. तो जब हम प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं और हमें ओलिगोहाइड्रोमनियस मिलता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम मिलता है, तो दैट मीन्स कि किडनी का कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर यूरिनरी ड्रेनेज नहीं हो रही, तो हमें उसमें प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलती है कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, बिकॉज यहाँ पे यूरेटरोपेल्विक जंक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है. ठीक हो गया? तो हमने क्या पढ़ा? हमारे पास कॉर्डियल एंड पे यूरेटरिक बड है and we have the metanephric mesenchyme. The metanephric mesenchyme interacts with the ureteric bud, and interaction induces differentiation and formation of glomerulus all the way to the distal convoluted tubules. ठीक हो गया? अब हम आगे देखेंगे जब ये चीजें गलत होती हैं तो हमें क्या क्या मिलता है. अगर इंटरेक्शन गलत हो गया या अगर उसने हॉलो होना था पाइप में वो नहीं हुआ तो हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी. अगर हमारे पास एबरेंट इंटरेक्शन है बिटवीन दीज टू टिश्यूज तो सबसे पहली चीज हमें मिलेगी सेवरल कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस, राइट? अगर कोई मैलफॉर्मेशन है तो वो एम्ब्रियोलॉजिकली ही हमें पकड़ पकड़ लेंगे हम, क्योंकि वो बचपन से है, वो पैदाइश में ही नहीं हुई सही तरह से, तो वापस रीनल एजीनी से जाता है और मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी आ जाता है. ठीक है? All right, moving on to the malformations of the kidney. We understood that the ureteric bud was developing from the caudal end of the mesonephric duct. It was forming the collecting ducts, the calyces, the renal pelvis, and the ureter. We also saw that the metanephric blastema, which is basically the intermediate mesodome, forms the nephrons. By nephron, I mean everything that starts from the glomerulus all the way to the distal convoluted tubule. Now, if this interaction between the ureteric bud and the metanephric blastema fails, we get kidney malformations.
सबसे पहले we look at renal agenesis. Renal agenesis means that the ureteric bud either did not form or did not reach the metanephric blastema. Since either it did not form or it did not reach the metanephric blastema, you will have no collecting system and no induction of nephrons. The kidney actually never develops. Now, this can either be unilateral or bilateral. अगर आपके पास एक किडनी नहीं है, तो दूसरी वाली किडनी कॉम्पनसेटरी हाइपरट्रॉफी में गुजरेगी. समटाइम्स दिस इज नॉट डिटेक्टेड द एंटायर लाइफ एंड कोई इंसिडेंटल फाइंडिंग में आपको पता चल जाता है कि एक किडनी है वो हाइपरट्रॉफी हुई है. तो ये यूनिलैटरल इतनी लीथल नहीं होती. बट व्हेन यू हैव बायलैटरल रीनल एजेनेसिस, व्हाट हैपेंस इज कि किडनी है ही नहीं. तो किडनी क्योंकि है ही नहीं, तो आपका ओलिगोहाइड्रोमनियोस मिलता है. क्योंकि किडनी है ही नहीं, बेबी पी नहीं कर रहा, तो आपका प्रीनेटली एमनियोटिक फ्लूइड ही कम है. आप प्रीनेटली अल्ट्रासाउंड पे देख लेंगे कि फ्लूइड नहीं है क्योंकि बेबी पी नहीं कर रहा. तो बेसिकली क्योंकि दोनों साइड्स की किडनी बनी ही नहीं, तो हमारे पास जब रीनल एजेनेसिस की बात कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि ये यूनिलैटरल है या बायलैटरल है. जब हमारे पास बायलैटरल होता है तो हम उसको बोलते हैं पॉटर सीक्वेंस. इसको हम पॉटर सीक्वेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने POTTER का एक न्यूमोनिक बनाया हुआ है. जब भी किडनी के ना होने की वजह से डेथ हो बेबी की, तो इट्स ऑलवेज ड्यू टू पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया. ठीक हो गया. Potter sequence is associated with pulmonary hypoplasia, oligohydramnios, twisted face, twisted skin, extremity defects, and renal failure. Basically एक बेबी होता है और उस बेबी के फ्लैट आपको ईयर्स मिलेंगे, लो सेट ईयर मिलेंगे, फेशियल फीचर्स फ्लैटेंड होंगे. तो इस तरह के केस में आपने पॉटर सीक्वेंस के बारे में सोचना है. अब इसके कॉजेज क्या है? हम आगे भी मालफॉर्मेशंस पढ़ेंगे, बट बेसिक कॉजेज इसके क्या है? Autosomal recessive polycystic kidney disease, obstructive uropathy. अब obstructed uropathy आपको कब मिलती है? Posterior urethral valves में. Posterior urethral valves is a condition only found in the males. Basically, you have a congenital membrane that is found at the urethral valve, and since it's just there, it causes an obstruction. इसमें आपको dilated bladder मिलेगा. ठीक है, क्योंकि बैक प्रेशर क्रिएट होता है, तो इस वजह से ब्लैडर वहां पे डायलेट हो जाता है. बायलैटरल रीनल एजेनेसिस में भी पॉटर सीक्वेंस मिलेगा. ऑब्वियस दोनों साइडों से आपकी किडनी डेवलप ही नहीं हुई, तो पॉटर सीक्वेंस हो जाएगा. और क्रोनिक प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी. ठीक है, बेसिकली ओलिगोहाइड्रोमियोस होता है, कंप्रेशन होता है डेवलपिंग फीटस का, और इसकी वजह से लिम्ब डिफॉर्मिटीज हो जाते हैं, फेशियल एनोमलीज हो जाते हैं, लो सेट एयर्स एंड रेगनोनैफिया हो जाता है, फ्लैटेंड नोज हो जाता है, कंप्रेशन ऑफ चेस्ट एंड लैक ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेशन इनटू फ्लूइड लंग्स. क्योंकि बेबी फीटल लंग्स में एमनियोटिक फ्लूइड सही से ले ही नहीं रहा है, तो इस वजह से पल्मोनरीली लंग सही से डेवलप ही नहीं हो पाते. तो इस वजह से दिस इज द कॉज ऑफ डेथ बेसिकली. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं टू द horseshoe kidney. When we talk about the horseshoe kidney में बेसिकली होता क्या है? आपके पास जो किडनी है ना, वो दोनों साइडों से फ्यूज्ड मिलती है आपको. ठीक है, अब वो फ्यूज्ड क्यों मिलती है? क्योंकि ये जो इंफीरियर पोल्स होते हैं किडनी के, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, इंफीरियर पोल्स ऑफ द किडनी फ्यूज. सिंस दे फ्यूज, दे गेट ट्रैप्ड अंडर द इंफीरियर मीसेंटेरिक आर्टरी. ठीक है, इंफीरियर मीसेंटेरिक आर्टरी के नीचे ये ट्रैप हो जाते हैं और फ्यूज होते हैं. क्योंकि ये फ्यूज होते हैं, एज यू कैन सी इन द CT स्कैन, द किडनीज आर फ्यूज्ड एट द इंफीरियर पोल्स. सिंस दे आर फ्यूज्ड, तो इंफीरियर मीसेंटेरिक आर्टरी के नीचे ये ट्रैप हो जाते हैं. क्योंकि ये ट्रैप हो जाते हैं, तो ये नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी में असेंड नहीं कर पाते. Inferior poles of both kidneys fuse abnormally. As they ascend from pelvis during fetal development, horseshoe kidneys get trapped under the inferior mesenteric artery and remain low in the abdomen. Kidneys function normally. This is associated with hydronephrosis, example, uteropelvic junction obstruction, renal stones, infections, and risk of renal cancer. तो आपको चार चीजें इसमें associated मिलती हैं. आपको hydronephrosis मिलता है, क्यों? uteropelvic junction की obstruction हो सकती है. रीनल स्टोन्स बहुत कॉमन होते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं, और इंक्रीज रिस्क ऑफ रीनल कैंसर मिलता है इसमें. ठीक है, अब यार वो कब कब मिलेगा? टर्नर सिंड्रोम में ये बहुत कॉमन होता है. 15% ऑफ चिल्ड्रन विद टर्नर सिंड्रोम हैव अ horseshoe kidney, and in trisomy 13, 18, and 21. Now, moving on, something to remember about the prevalence of horseshoe kidney is 1 in 500 people get this. Okay, and 15% children with Turner syndrome have a horseshoe kidney.
मूविंग ऑन टू कंजेनिटल सॉलिटरी फंक्शनिंग किडनी, इसको हम CSFK भी कहते हैं, कंजेनिटल सॉलिटरी फंक्शनिंग किडनी। ठीक है, दिस इज व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न विद ओनली वन फंक्शनिंग किडनी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज एन अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक किडनी है, ये नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक किडनी मिल रही है हमें। ठीक है, यूनिलैटरल रीनल एजिनेसिस विद कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ द नॉर्मल राइट किडनी। ठीक है, एक किडनी जो है वो सही से बनी ही नहीं और दूसरी वाली जो है वो हाइपरट्रॉफी कर गई, ज्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि वो ही तो सारा काम कर रही है। ठीक है, कंजेनिटल सॉलिटरी फंक्शन किडनी, इसमें यूनिलैटरल रीनल एजिनेसिस हो जाता है। ठीक है, या फिर जो नॉन फंक्शनल साइड है वो या तो बनी ही नहीं, और अगर बनी तो शायद मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक हो गई। ठीक है, या तो एक साइड की बनी ही नहीं, यूटेरिक बड फेल टू डेवलप एंड इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ द मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम, तो बनी ही नहीं। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक हो गई, दूसरी बनी लेकिन वो सिस्टिक हो गई। ठीक है, यूटेरिक बड फेल टू डेवलप डिफरेंशिएशन ऑफ द मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम, एक साइड पे तो यूटेरिक बड बना ही नहीं, और एक साइड पे यूटेरिक बड बना लेकिन उसने मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम की डिफरेंशिएशन सही से नहीं की, तो वो नॉन फंक्शनिंग है। अगर वो नॉन फंक्शनिंग है तो उसमें क्या चीजें मिलती हैं, दो चीजें मिलती हैं, सिस्ट्स मिलते हैं और कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं। मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो जो मल्टी सिस्टिक किडनी है, ये देखें यहाँ पे, ये आपको अल्ट्रासाउंड पे सिस्ट नजर आते हैं, दिस इज अ मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। और आपको यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू और सिस्ट नजर आएंगे हिस्टोपैथ पे, दिस इज द सिस्टिक किडनी। ठीक है, तो दो ऑप्शन होती हैं आपके पास कंजेनिटल सॉलिटरी फंक्शन किडनी में, या तो एक साइड की किडनी बनी ही नहीं क्योंकि यूरेटरिक बड फेल्ड, या तो एक साइड की किडनी बनी लेकिन वो सिस्टिक हो गई, डिस्प्लास्टिक हो गई। ठीक है, अब हमारे पास आता है डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम। डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, आपके पास bifurcation होती है of uteric bud before it enters the metanephric blastema, which creates a Y-shaped bifid ureter। दो चीजें होती हैं जहां पे आपको डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम मिले, या तो यूरेटरिक बड ब्लास्टीमा से में एंटर होने से पहले ही वाई शेप्ड यूरेटर बना देता है, एक यूरेटर होता है लेकिन उसके दो मुंह होते हैं। ठीक है, या फिर यूरेटरिक बड जो है ना वो दो बन जाते हैं बिफोर दे इंटरैक्ट विद मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा, तो बेसिकली टोटली दो ड्रेनेज सिस्टम्स बन जाते हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग आई कैन शो यू हियर। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम। ठीक है, here you can see this is the duplex collecting system। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल यूरेटर orifice ऑफ लोअर मोइटी यूरेटर, ठीक है, और यहाँ पे यूरेटर सील ऑफ अपर मोइटी यूरेटर, ये देखें, दिस इज हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है उसमें। ठीक है, जो और रिफ्लक्स ऑफ यूरिन होती है, वेसिकुलर रिफ्लक्स मिलता है आपको, और यूट्रोवेसाइकल जंक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन भी मिलती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। Look, बेसिकली ये देखिए, ये डुप्लेक्स एक्टोपिक किडनीज है। ठीक है, यहाँ पे आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस मिल रहा है, शॉर्ट डुप्लेक्स यूरेटर। तो इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं डुप्लेक्स सिस्टम्स की। ठीक है, तो एक कॉमन टाइप क्या है हमारे पास, एक टाइप ये है कि आपकी यूरेटरिक बड की अर्ली बाइफर्केशन हो गई तो आपको वाई शेप्ड बाइफिड यूरेटर मिल गया। या दूसरी ऑप्शन ये है कि दो यूरेटरिक बड्स बने और उन्होंने दो दफा ऑब्वियसली मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा से इंटरेक्ट किया, तो आपके पास दो ड्रेनेज सिस्टम्स बन गए। ठीक है, इसमें वेसिको यूटेरल रिफ्लक्स बहुत कॉमन होता है, यूटेरल ऑब्स्ट्रक्शन बहुत कॉमन होती है, और इन सब चीजों की वजह से रिस्क फॉर यूटीआई इंक्रीजेस अलॉट। एक वायर मेयर रूल है, अपर रोल यूरेटर जो है वहां पे एक्टोपिक इंसर्शन होती है और इस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और लोअर पोल यूरेटर जो है वहां पे रिफ्लक्स होती है। ठीक है, दिस इज समथिंग यू कैन रिमेंबर, अ चाइल्ड विद रिकरेंट यूटीआईज एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस थिंक डुप्लेक्स सिस्टम। ठीक है, एक ग्लांस समरी हमें यहाँ पे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व्स देख लेते हैं। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व्स, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व्स जो है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है पोस्टीरियर यूरेथ्रा इन मेल्स में, दिस हैपेंस इन मेल्स। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये 1 in 4,000 पीपल में होती है, कहीं कहीं लिखा है 1 in 5,000 to 8,000 पीपल में होता है, द प्रेवलेंस वैरीज।
ना होता क्या है कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है पोस्टीरियर यूरेथ्रा में और उसकी वजह से बैक प्रेशर क्रिएट होता है। बैक प्रेशर की वजह से आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलता है, डायलेटेड ब्लैडर मिलता है और ओलिगोहाइड्रोमियोस मिलता है। क्योंकि आपको ओलिगोहाइड्रोमियोस मिलता है, आपको पॉटर सीक्वेंस मिलती है। ठीक है, दिस इज अ मेल फीटस विद डिस्टेंडेड ब्लैडर. A clinical vignette will come a male fetus with distended bladder and bilateral hydronephrosis on prenatal ultrasound. ठीक है, no strong racial predilection. Most common cause of bladder outlet obstruction in male infants. It's associated with oligohydramnios in cases of severe obstruction. Now we enter the kidney anatomy and glomerular structure. When we talk about the kidney anatomy, we should see कि arteries में blood का flow कैसे होता है. सबसे पहले हमारे पास renal artery आती है. Renal artery से blood जाता है आपकी segmental artery से. Segmental artery में जब blood आ जाता है, तो अब वो जाएगा interlobar artery में. यहाँ पे हम देख सकते हैं interlobar artery. इंटरलोबार आर्टरी के बाद हमारे पास आर्क्यूएट आर्टरी में ब्लड आता है. ठीक है, ये आर्क्यूएट आर्टरी. आर्क्यूएट आर्टरी के बाद हमारे पास ब्लड आता है इंटरलोब्यूलर आर्टरी. एक दफा शुरू से करते हैं. We have the renal artery and then we have the blood going into the segmental arteries and then we have interlobar arteries. Then we have blood going into the arcuate artery before it goes into the interlobular artery. Okay. And all of this blood, finally, when it's in the interlobular artery, where does it go? It goes into the afferent arteriole. A way to remember this is that afferent arteriole starts with A, so the blood is arriving here basically. It's like it's a memory hook for you. And then it goes into the glomerulus. Once the blood has gone into the glomerulus, it goes into the efferent arteriole. Efferent starts with E, so you can remember that the blood is exiting the glomerulus through the efferent arteriole. Okay, and then finally the blood goes into the peritubular capillaries or vasa recta, and then this becomes part of the venous outflow. So something to remember here. Here you can see the glomerulus. This is the Bowman space, and this is convoluted tubule. Something to remember is why does the renal medulla get ischemic injury? Now, as you can see, this is our medullary area. This is the outer cortex area, right? Something to remember here is why does the renal medulla get ischemic injury? Because the cortex gets much more blood, right? The cortex here gets much more blood than the medulla. So medulla is physiologically hypoxic. इस वजह से the medulla gets ischemic injury but the cortex doesn't because the cortex is very rich in blood. Now, shock में क्या होता है? Shock की clinical situation में हमारे पास acute tubular necrosis होता है. ठीक है? That's something we can हम बाद में देखेंगे. NSAIDs की वजह से papillary necrosis होता है. NSAID की वजह से आपको हमेशा papillary necrosis मिलेगा. शॉक की वजह से आपको acute tubular necrosis मिलेगा. और डायबिटीज में there is medullary damage. Okay. Um, this is something supported by the NCBI. So I'll say it here that the renal medullary oxygen tension is 10 to 20 millimeters of mercury versus the cortex oxygen is 50 millimeters of mercury. तो इतना ज़्यादा difference है कि जो medullary oxygen है वो 10 to 20 millimeters of mercury होती है और जो cortex oxygen है वो 50 millimeters of mercury होती है. हम लेफ्ट किडनी को डोनेशन के लिए क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि लेफ्ट किडनी की रीनल वेल ज्यादा लंबी होती है. जो आपकी रीनल वेन होती है ना लेफ्ट किडनी की, वो ज्यादा लंबी होती है. तो द लेफ्ट रीनल वेन ड्रेन्स द लेफ्ट गोनाडल वेन एंड द लेफ्ट सुप्रा रीनल वेन. रिमेंबर दिस दैट द लेफ्ट रीनल वेन ड्रेन्स द लेफ्ट गोनाडल वेन एंड द लेफ्ट सुप्रा रीनल वेन. इस वजह से हम लेफ्ट किडनी को प्रेफर करते हैं डोनेशन के लिए. A trick to remember this is कि varicocele हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है. क्यों? क्योंकि compression of left renal vein की वजह से varicocele बनता है. And it's always on the left side. Now we can look at the glomerular filtration barrier. ठीक है? We saw that the blood came from the afferent arteriole, went to the glomerulus, and then left into the efferent exiting arteriole, right? Now, there's some things that are important for the glomerulus structure. Once the blood enters the afferent arteriole, we find a fenestrated endothelium here. ठीक है, ये जो एंडोथीलियम हमको यहाँ पे मिल रही है ना, ये वाली, ये फेनेस्ट्रेटेड होती है. फेनेस्ट्रेटेड का मतलब होता है सीव लाइक. इट्स लाइक अ छन्नी, राइट? सिंस इट्स लाइक अ छन्नी, इट एक्ट्स टू हेल्प इन फिल्ट्रेशन. ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये वाली, ये जो हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आ रही है, दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड ऑफ टू थिंग्स, टाइप 4 कोलेजन एंड हेपारिन सल्फेट. ठीक है,
हेपारिन सल्फेट और टाइप 4 कोलेजन। फिर हमारे पास आ जाती है पोडोसाइट फुट प्रोसेसेस। ये जो पैर की तरह के प्रोसेसेस है ना, ये पोडोसाइट्स हैं, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जब हमारे पास प्रोटीन जो है वो अन्य वाला लीक हो रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, वो पोडोसाइट्स की जो ये स्लिट डायफ्राम्स हैं ये बहुत खुल जाते हैं, और इसकी वजह से वो जगह इतनी बड़ी हो जाती है कि प्रोटीन लीक करता है, और इस वजह से आपको पूरी बॉडी में इतना ज्यादा एडिमा मिलता है, ठीक है। नाउ वी हैव अ चार्ज बैरियर। नेगेटिवली चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन्स, यहाँ पे जो नॉर्मली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और एल्ब्यूमिन भी नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी में आपके पास कभी भी प्रोटीन नहीं निकलता, ठीक है। लेकिन हमारे पास, जैसे मैंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम बताया, एक और डिजीज होता है उसको हम कहते हैं मिनिमल चेंज डिजीज। मिनिमल चेंज डिजीज में भी आपके पास पोडोसाइट्स की इफेसमेंट होती है। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है, ये तो आपकी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये वाली, ये मोटी हो जाती है, ठीक है। और फिर एल्पोर्ट सिंड्रोम होता है एक। एल्पोर्ट सिंड्रोम में टाइप 4 कोलेजन डिफेक्ट होता है। क्योंकि टाइप 4 कोलेजन डिफेक्ट होता है, और मैंने आपको बताया था कि आपका जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो टाइप 4 कोलेजन से बन रही है। तो अगर टाइप 4 कोलेजन डिफेक्ट है एल्पोर्ट सिंड्रोम में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी फिल्ट्रेशन भी इफेक्ट होगी, ठीक है। Always remember, if there's no kidneys and a flat face, you have a Potter sequence. It's a male fetus with a bladder distension. We have posterior urethral valves. If the kidney is stuck low under the IMA, we have a horseshoe kidney. Proteinuria एक बच्चे में, लेकिन नॉर्मल LM है, मिनिमल चेंज डिजीज। NSAIDs है और हेमाटूरिया है, तो पैपिलरी नेक्रोसिस, ठीक है। We now move on to the course of ureters. Now this is very tested because the basic path is very important. सबसे पहले हमारे पास रीनल पेल्विस होती है, ठीक है। दिस डिसेंड्स, यूरेटर क्या करता है कि रीनल पेल्विस से रेट्रोपेरिटोनियली डिसेंड करता है। इट क्रॉसेस द गोनाडल वेसल्स and then it crosses the common iliac artery bifurcation and then it enters the bladder wall obliquely. तो बेसिकली हम हमेशा बोलते हैं कि ureter runs under the artery. This is very important for the pelvis anatomy section. Okay, so here we can see that the ureter transfers urine from the kidney to the bladder, right? So here I can see the kidney and the ureter, right? Now it crosses retroperitoneally, right? How do we see retroperitoneally? We're going to see the parietal peritoneum here. This is the parietal peritoneum. And then behind this is lies the kidney here, right? We then see the kidney here and the ureter here. So it lies retroperitoneally. And then we see the bladder here, right? So now look at all of these structures. This is your abdominal aorta, and these are your two ureters, right? So they lie retroperitoneally because all of this is part of the peritoneum in anteriorly from this section. And then behind it, we have the psoas major. Now we have the ureter. It's 25 centimeters long with 3 millimeter diameter. That's roughly the size of a grain of sand on a fingertip. So we have the ureter and it has three common constriction locations, right? Now look at this. The first common constriction is where there is the renal pelvis ureter, right? That's the first common constriction. Second one is on the pelvic brim where the common iliac artery bifurcates into the internal and external iliac artery. And then this third constriction is where the ureter enters the bladder. Ureter obliquely traverses the bladder wall. And this is the third constriction. This is where we find the renal stones being lodged into these constrictions. So this is important. Another thing important is that this is we're looking at this view superiorly, right? Looking at this view superiorly, we can see that this is the uterus and this is the bladder, right? And this is the uterine artery. The ureter crosses under the uterine artery, which is also known as water under the bridge. This is important to know that the ureter crosses under the uterine artery, the water under the bridge, because when we're doing hysterectomy or pelvic procedures, it's very important to see because the ureter is at risk of injury during ligation of uterine vessels and hysterectomy, and that's why it's called as water under the bridge. So this is basically the course of the ureter.
It rises from the renal pelvis, travels under the gonadal arteries, over the common iliac artery. I told you this is a common constriction site under the uterine artery. This is why we call it water under the bridge. All of this is retroperitoneal. Gynecologic procedures like ligation of uterine artery over ovarian vessels is very common. May damage ureter. Also can uterine obstruction and leak can happen because of this. Bladder contraction compresses the intravesical ureter, preventing urine reflux. जब bladder contract करता है तो वो intravesical ureter वाले एरिया को contract करता है, उसकी वजह से urine reflux नहीं करता. Here you can see that this is the uterine artery, and just above the uterine artery you have this ureter entering, right? तो ये जो यूरेटर एंटर कर रहा होता है जब आपका ब्लैडर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो इंट्रावेसाइकल यूरेटर को यहाँ पे अंदर जो ये वाला एरिया यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से कोई यूरिन रिफ्लक्स नहीं हो सकता. ब्लड सप्लाई टू द यूरेटर कम्स टू थ्री थिंग्स. ठीक है, जो प्रॉक्सिमल यूरेटर है वो रीनल एरिया में है तो वहां पे रीनल आर्टरीज को सप्लाई करती हैं. जो मिडिल एरिया है वो गोनाडल आर्टरी के नीचे से ट्रैवल कराता है, वो ट्रैवलिंग अंडर गोनाडल आर्टरीज, तो गोनाडल आर्टरीज को सप्लाई करती हैं. एओर्टा उसके बिल्कुल दो यूरेटर आर्टरीज के बीच में एओर्टा पड़ा हुआ है तो एओर्टा सप्लाई करता है. और कॉमन एंड इंटरनल इलियक आर्टरीज भी सप्लाई करती हैं क्योंकि इसके बिल्कुल नीचे से ये ट्रैवर्स कर रहा है. डिस्टली आपके पास इंटरनल इलियक आती है और सुपीरियर वेसाइकल आर्टरीज को जिसको सप्लाई करती हैं. Why is this important? Because distally आपके पास ब्लैडर के अंदर यूरेटर एंटर हो रहा है तो इसलिए आपके पास सुपीरियर वेसाइकल आर्टरीज को सप्लाई करेंगे. ठीक है, we've seen water flows over the iliacs, water under the bridge theory है यहाँ पे uterine artery या फिर vas difference की, ये भी हम देख चुके हैं. Three common points of uterine obstruction. Basically, we saw the uteropelvic junction, the pelvic inlet, and the uterovesical junction. Uteropelvic junction जहाँ पे वो renal pelvis से निकल रहा था, pelvic inlet जहाँ पे उसके ऊपर common iliac artery bifurcate कर रही थी, and then we had the uterovesical junction. ठीक है, जहाँ पे वो actually obliquely enter कर रहा था bladder के अंदर. ठीक हो गया? Now let's move on to the fluid compartments. The total body water for an average adult male is 60% of the body weight, right? You can see that here. For a 70 kilogram person, this will be about 42 liters, right? So 60% of body weight for a 70 kilogram person will be 42 liters, right? Moving on, now we have the ICF and the ECF. We have the intracellular fluid and we have the extracellular fluid. The intracellular fluid is 28 liters because it's two-third, right? So it's basically 40% of 70 kg, two-third, that is going to be 28 liters. And then one-third, 20% of 70 kg is going to be 14 kg. ठीक हो गया? So 28 लीटर आपको इंट्रासेलुलर फ्लूइड मिलेगा और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड आपको 14 लीटर्स मिलेगा या फिर 14 केजी. ठीक है, बिकॉज इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू-थर्ड होता है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वन-थर्ड होता है. नाउ हमारे पास फर्दर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ब्रेक डाउन होता है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं. प्लाज्मा आ जाता है और इंटरस्टेशियल फ्लूइड आ जाता है. ठीक है, प्लाज्मा में हमारे पास रेड ब्लड सेल वॉल्यूम भी आता है. ठीक है, प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल वॉल्यूम को हम साथ में लेते हैं. ठीक है, ये ब्लड वॉल्यूम है. यहाँ पे हमारे पास हेमाटोक्रिट भी आता है, हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, पहले हमारे पास इंटरस्टेशियल फ्लूइड आता है. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे थोड़े इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूशंस. अब हमारे पास जो 60-40 रूल हमने देख लिया. 60% आपका टोटल बॉडी वाटर होता है. नॉन बॉडी वाटर इज 40% ऑफ द बॉडी मास विच इज 28 kg. और इस ये आपका नॉन वाटर बॉडी मास है. ठीक है, फिर हमारे पास 60% टोटल बॉडी वाटर इज 60% of the total body mass is total body water, and then 40% is the ICF. जिसको हमने कैलकुलेट किया है 28 kg. और इसमें हमारे पास पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हैं, एग्जाम्पल एटीपी. ठीक है, और हमारे पास 20% एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट और एल्ब्यूमिन. यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन जो है ना, दैट ड्राइव्स potassium into the cells. तो ये जो पोटेशियम है ना, इंसुलिन ड्राइव्स दिस पोटेशियम इनटू द सेल्स. और एसिडोसिस में क्या होता है, एसिडोसिस ड्राइव्स दिस पोटेशियम आउट ऑफ द सेल्स. ठीक है,
तो ये वाला जो पोटेशियम है ना आपके पास यहाँ पे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का, इसमें हमारे पास पोटेशियम अंदर कब आता है, जब आपके पास इंसुलिन होता है, और बाहर कब जाता है, जब आपके पास एसिडोसिस होता है। अब हमारे पास चीजों को मेजर करने के तरीके हैं, ठीक है। अगर हमने प्लाज्मा को मेजर करना है, दिस प्लाज्मा, दिस कैन बी मेजर्ड बाय रेडियो लेबलिंग एल्ब्यूमिन, ठीक है। अगर हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेजर करना है, इस एक्स्ट्रा पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेजर करना है, दिस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग इन्युलिन एंड मैनाडोल, ठीक है। और फिर हमारे पास टोटल बॉडी वाटर है, अगर हमने इसको मेजर करना है तो हम या तो D2O यूज करते हैं या फिर ट्राइटियम यूज करते हैं, ठीक है। ट्राइटियम या D2O यूज करते हैं। प्लाज्मा वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है दैट वी शुड नो, टोटल बॉडी TBV इंटू 1 - हेमाटोक्रिट, ठीक हो गया। सेम ऑस्मोलैरिटी की एग्जांपल दी गई, 285 to 295 मिलीऑस्मोल्स पर केजी ऑफ वाटर। अब हम आगे चलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके डिजीजेस यहाँ पे बहुत टाई डाउन करती हैं। So this is responsible for filtration of plasma according to size and charge selectivity. It's composed of, as we saw previously also, it's composed of fenestrated capillary endothelium, basement membrane with type 4 collagen. Type 4 collagen Alport syndrome रहता है और इस वजह से यहाँ पे इशू आता है, टाइप 4 collagen and heparinseal state। और फिर visceral epithelial layer consisting of podocyte foot processes। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पे पोडोसाइट फुट प्रोसेसेस की मिनिमल चेंजेस इसमें इफेसमेंट हो जाती है, ये खुले खुले हो जाते हैं। This is a picture where you can see the proximal convoluted tubule. You can see the Bowman's capsule, the Bowman's space. capillaries नजर आ रही हैं, these are the podocytes and इसमें effacement हो जाती है minimal change disease में। फिर हमारे पास mesangial cells होते हैं, ये mesangial cells हैं। यहाँ पे आपको basically histology आप यहाँ पे appreciate कर सकते हैं। Now, something to remember all of this by is this is basically what I've shown you was the glomerular filtration barrier. Um, हमारे पास फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम होती है विच ब्लॉक्स द सेल्स, क्योंकि फेनेस्ट्रेटेड होती है, फिल्टर लाइक होती है, सेल्स को ब्लॉक करती है। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, दिस इज मेड ऑफ टाइप 4 कोलेजन एंड चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है तो फिर जितने भी आपके ये नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं जैसे एल्ब्यूमिन है उसको ये रिपेल करती है, वो अंदर नहीं आ पाते। और फिर पोडोसाइट फुट प्रोसेसेस हैं, इनमें स्प्लिट डायफ्राम होता है और वो जो है जब खुले खुले हो जाते हैं कुछ डिजीजेज में तो फिर वो एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स होने देते हैं। वरना इसका जो फायदा ये होता है कि ये पोडोसाइट फुट प्रोसेसेस जो हैं 50 से 60 नैनोमीटर्स तक से ज्यादा के पार्टिकल्स को अंदर नहीं आने देते। फेनेस्ट्रेट का एंडोथेलियम भी जो है ना, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ मोर देन 100 नैनोमीटर मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। तो व्हाट ईच लेयर ब्लॉक्स, जो आपकी एंडोथेलियल लेयर है वो ब्लॉक करती है आरबीसीज को एंटर होने से। जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्योंकि 100 नैनोमीटर के बड़े से पार्टिकल्स को अंदर नहीं आने देती है, प्रोटीन्स को ब्लॉक करती है। और जो आपकी पोडोसाइट्स हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक करते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन को ब्लॉक करते हैं। नेगेटिव चार्ज रिपेल्स एल्ब्यूमिन, ठीक हो गया। मिनिमल चेंज डिजीज में क्या होता है, पोडोसाइट इफेसमेंट होती है, सिलेक्टिव एल्ब्यूमिनेरिया होता है, पोडोसाइट इफेस हो जाते हैं, एल्ब्यूमिन अंदर आ जाते हैं। चिल्ड्रन में बहुत कॉमन होते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू स्टेरॉइड्स। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आपकी ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन चौड़ी जाती है, तो चार्ज सिलेक्टिविटी लॉस हो जाती है और उसकी वजह से ये साउथ एशियन और अफ्रीकन एंसेस्ट्री में बहुत कॉमन है कि यहाँ डायबिटीज बहुत कॉमन है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी आपके पास 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा प्रोटीन यूरिया होता है यूरिन में, 3500 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रोटीन आता है यूरिन में। और इसमें बेसिकली पोडोसाइट की इंजरी हो जाती है, नेगेटिव चार्ज लूज हो जाता है, स्लिट डायफ्राम डैमेज होता है और एल्ब्यूमिन यूरिन में लीक करता है। नॉर्मली एल्ब्यूमिन रिपेल करता है लेकिन नेफ्रोटिक में वो एल्ब्यूमिन लीक करता है यूरिन के अंदर। तो आपके पास बहुत हैवी प्रोटीन यूरिया होता है, हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया होता है क्योंकि एल्ब्यूमिन लॉस हो रहा है। और एडीमा क्यों होता है, क्योंकि प्लाज्मा ऑन कोर्टिक प्रेशर ड्रॉप कर जाता है तो एडीमा होता है, थर्ड स्पेस लीकिंग होती है। और हाइपरलिपिडीमिया होता है क्योंकि लिवर जो है वो कॉम्पनसेट करता है बाय क्रिएटिंग मोर लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। तो आपका निमोनिक जो है ना, इट्स पेल प्रोटीनूरिया, एल्ब्यूमिन इज लो एंड लिपिड्स आर हाई एंड देयर इज एडीमा। We now move on to renal clearance. Renal clearance का फॉर्मूला ये है, concentration of the substance CX is basically
The concentration of that substance X in urine multiplied by the volume, the urine flow rate. This V is basically the urine flow rate. So the urine flow rate in milliliters per minute divided by the plasma concentration of that substance. So basically उस substance का urine में concentration multiplied by urine flow rate divided by उस substance का plasma में concentration. This tells you the volume of plasma from which the substance is completely cleared in the urine per unit time. It's always in milliliters per minute. तो होता क्या है कि हम इस रीनल क्लियरेंस को चेक करते हैं जीएफआर से। अगर रीनल क्लियरेंस जीएफआर से कम है तो इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल नेट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो गई है या तो वो फ्रीली फिल्टर नहीं हुआ, ठीक है। अगर क्लियरेंस जीएफआर से ज्यादा है तो इसका मतलब है ओवरऑल सिक्रीशन हुई है उस सब्सटेंस की, नेट ट्यूबुलर सिक्रीशन हुई है। और अगर क्लियरेंस जीएफआर जितनी है तो इसका मतलब है कोई नेट सिक्रीशन नहीं है और कोई नेट रीअब्जॉर्प्शन नहीं है, ठीक है, बस जितना आया उतना निकल गया। दिस इज द रीनल क्लियरेंस। Now move on to the GFR, the glomerular filtration rate. Um, Something that I would want to mention for the clearance is कि ग्लूकोज जो है ना हमारे पास वो fully reabsorbed होती है। 100% आपकी ग्लूकोज reabsorb होती है तो ग्लूकोज की clearance is going to be a lot less than the GFR. और इन्युलिन, the inulin is completely cleared, तो फिर inulin की clearance is going to be equal to GFR. And something like the para-aminohippuric acid, इसकी क्लियरेंस भी तकरीबन रीनल प्लाज्मा फ्लो जितनी होती है। तो ओवरऑल इसकी भी नेट सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं होती, जितना आता है उतना निकल जाता है। A common USMLE trap that you will find is if clearance is less than GFR, अगर clearance GFR से कम है तो सब्सटेंस फ्रीली फिल्टर्ड नहीं है, बट ये गलत है। एक्चुअली अगर क्लियरेंस जीएफआर से कम है तो इसका मतलब है कि सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब हो रहा है ट्यूबुलर फ्लूइड में, ठीक है। हम बताते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। व्हाट इज जीएफआर? इट्स द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय ऑल ग्लोमेरुलाई पर मिनट। कितना प्लाज्मा फिल्टर हुआ है सारे ग्लोमेरुलाई पे पर मिनट। नॉर्मल जीएफआर कितना होता है? 100 टू 125 मिलीलीटर पर मिनट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि नॉर्मल जीएफआर कितना है? 100 टू 125 मिलीलीटर पर मिनट। अब हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड जो है ना वो इनिलिन है। इनिलिन परफेक्ट क्यों है? क्योंकि इनिलिन फ्रीली फिल्टर होता है, ना ये रीअब्सॉर्ब होता है, ना ये सिक्रीट होता है, ना ये मेटाबोलाइज होता है। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिलिन इज कंप्लीटली इक्वल टू जीएफआर, ठीक है। अगर तो एग्जाम में क्वेश्चन से फ्रीली फिल्टर्ड नीदर रीअब्सॉर्ब नॉर सिक्रीटेड तो फिर आंसर जीएफआर है। क्रिएटिनिन क्या करता है? क्रिएटिनिन फ्रीली फिल्टर होता है लेकिन थोड़ा सा ट्यूबुल से सिक्रीट होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्रेटिनिन खुद तो फ्रीली फिल्टर होता है लेकिन थोड़ा ट्यूबुल्स खुद सिक्रीट करते हैं, तो क्रेटिनिन स्लाइटली ओवर एस्टिमेट करता है जीएफआर को, ठीक है। एज जीएफआर फॉल्स क्रेटिनिन राइजेस नॉन लिनियरली। तो बाय द टाइम आप एक लैब रिपोर्ट में क्रेटिनिन राइज होते हुए देखते हैं, जीएफआर बहुत ज्यादा फॉल कर चुका है। A small creatinine rise may reflect a very large GFR loss. यहाँ पे स्टार्लिंग फोर्सेस आ जाते हैं कॉन्सेप्ट में। Okay, we now move on to the glomerular filtration fraction. Inulin clearance can be used to calculate GFR because it is freely filtered and is neither reabsorbed nor secreted. The concentration of inulin is equal to GFR, which is equal to um, यहाँ पे देखिए, which is equal to U inulin, मतलब urine concentration of inulin into V मतलब यूरिन फ्लो रेट। V क्या है हमारा? यूरिन फ्लो रेट है। और P इन्युलिन मतलब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन्युलिन। दिस इज इक्वल टू द, अब हम स्टार्लिंग फोर्सेस को बीच में ले आएंगे। दिस इज इक्वल टू द के एफ, बेसिकली हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। और फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट है हमारा के एफ, ठीक है। और हमारे पास आ जाते हैं ब्रैकेट ओपन पीजीसी माइनस पीबीएस। पीजीसी क्या है? बेसिकली आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस द बोमन स्पेस प्रेशर। ये दोनों एक ब्रैकेट में माइनस हो गए, माइनस आपका ऑनकोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलस माइनस आपका ऑनकोटिक प्रेशर इन बोमन कैप्सूल। तो ये सारे मिल के आपको ये और ये दोनों जीएफआर देते हैं। यू इन्युलिन मतलब यूरिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन्युलिन इनटू यूरिन फ्लो रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इन्युलिन इज इक्वल टू जीएफआर, या फिर फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट ब्रैकेट ओपन द glomerular capillary hydrostatic pressure minus the
बोमन स्पेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बोमन स्पेस प्रेशर इस ब्रैकेट में रख के माइनस ऑन क्वार्टर प्रेशर ग्लोमेरुलस माइनस बेसिकली माइनस ऑनकोटिक प्रेशर इन बोमन स्पेस। ये नॉर्मली जीरो होता है। ये जो बोमन स्पेस का ऑनकोटिक प्रेशर नॉर्मली जीरो होता है, नॉर्मली देयर इज नो प्रोटीन इनफिल्ट्रेट। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जब आपके पास प्रोटीन आता है फिल्ट्रेट में तो ये बढ़ जाता है। नाउ व्हाट इंक्रीजेस जीएफआर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता क्या है? नॉर्मल 100 टू 125 होता है। ठीक है, ये क्या चीज इसको बढ़ाती है? एफरेंट डायलेशन, मतलब जो ब्लड आ रहा है वो डायलेट हो गया है। ठीक है, वो इसको बढ़ाता है, या फिर इफरेंट कंस्ट्रक्शन, जो ब्लड लीव कर रहा है वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इसको बढ़ाता है। ठीक हो गया। अब अब आपने देखा है कि जीएफआर बढ़ता तब है जब एफरेंट डायलेशन होती है। अब एफरेंट डायलेशन, एफरेंट आर्टेरियोल की डायलेशन कब होती है? जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, PGE2 और PGI2, ये आपके these are also locally produced in the kidney. They are produced by the endothelium and the macula densa. हम आगे देखेंगे endothelium और macula densa क्या चीजें होती हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे भी आपको दिखा सकती हूँ। मैक्युला डेंसा आगे देख लेंगे। ठीक है, एंडोथेलियम और मैक्युला डेंसा ये कब रिलीज होते हैं? जब वॉल्यूम डिप्लीशन होती है, या हाइपोटेंशन होती है, या स्ट्रेस स्टेट्स होते हैं। स्ट्रेस स्टेट्स में हमारे पास सेप्सिस, सिरोसिस, CHF आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? डायलेट करते हैं एफरेंट आर्टेरियो को, क्यों? ताकि रीनल ब्लड फ्लो मेंटेन रहे, और जीएफआर को ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो नॉर्मली आपके पास जीएफआर तब बढ़ता है जब आप जो है एफरेंट डायलेशन कराते हैं। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल एनएसएड्स क्या करते हैं? एनएसएड्स इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन, तो ये एफरेंट कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं और जीएफआर कम करते हैं, और इसलिए एनएसएड से आपकी अक्यूट किडनी इंजरी के चांसेस होते हैं। ठीक है, हमारे पास निट्रिक ऑक्साइड भी होता है, ये एक एंडोथेलियल वैसोडाइलेटर होता है, इसलिए ये एफरेंट और इफरेंट दोनों की डायलेशन कर देता है। ठीक है, हमारे पास लो NaCl जो है ना, अगर सोडियम क्लोराइड कम है तो दिस इज सेंस्ड बाय द मैक्युला डेंसा। मैक्युला डेंसा क्या करता है? वो देखता है कि सोडियम क्लोराइड कम है, और फिर वो क्या करता है? वो वॉल्यूम डिप्लीशन और डायरेटिक यूज में क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स और निट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है मैक्रोडेंसा, क्योंकि मैक्रोडेंसा के रिसेप्टर्स होते हैं आपके। वो चेक करता है कि NaCl कम है, और फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स और निट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराता है, और फिर एफरेंट डायलेशन कराता है। क्यों? ताकि जीएफआर रेज हो जाए। एक और चीज है जो इफरेंट आर्टीरियल की कंस्ट्रक्शन कराता है। इफरेंट आर्टीरियल की कंस्ट्रक्शन कौन कराता है? एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 इफरेंट आर्टीरियल पे देखता है। लेट मी शो यू दिस पिक्चर। ये देखिए, एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, क्या करता है? वो इफरेंट आर्टीरियोल देखता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज से एफरेंट आर्टीरियोल आपका जो है वो कंस्ट्रिक्ट होता है, और इफरेंट आर्टीरियोल जो है वो एंजियोटेंसिन से होता है। एंजियोटेंसिन क्या करता है? इफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्ट होता है, और एंजियोटेंसिन 2 फिर मजे से आता है, और इसकी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्टिवेशन से बीपी, अगर जो आपका बीपी कम होता है, या सोडियम लो होता है, या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है, तो इस सारे के थ्रू वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से प्रेफरेंशियल इफरेंट कंस्ट्रक्शन कराएगा, उससे ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर रेज होता है। तो बेसिकली वो क्या करता है? वो जीएफआर रेज करता है इवन दो रीनल ब्लड फ्लो कम है। तो एस इनहिबिटर्स जो हैं और ए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये इफरेंट कंस्ट्रक्शन को हटा देते हैं। वहां पे जो कंस्ट्रक्शन हुई होती है ना, जो कि बॉडी इसलिए करती है ताकि जीएफआर मेंटेन रहे, ये उसको एस इनहिबिटर उसको हटा देता है, जीएफआर ड्रॉप करता है। जब हम एस इनहिबिटर्स देते हैं तो जीएफआर ड्रॉप होता है। ठीक है, एस इनहिबिटर्स आपके सारे वो प्रिल वाली दवाइयां थी, बेनाजिप्रिल, सिलाजोप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनालिप्रिल। तो ये सारी एस इनहिबिटर्स क्या करी थी? जीएफआर कम करी थी इफरेंट कंस्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो है वो क्या कर रहा था? नॉर्मल जो एंजियोटेंसिन है आपका, वो इफरेंट कंस्ट्रिक्शन क्यों करता है? ताकि ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाए और जीएफआर मेंटेन रहे, इवन दो आपका रीनल ब्लड फ्लो कम है। लेकिन एस इनहिबिटर्स इस प्रोटेक्शन को हटा देता है, तो इसलिए आपका जीएफआर ड्रॉप करता है। ठीक हो गया। हम एक और चीज देखते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू शॉक और सीवियर हाइपोवोलीमिया में वो दोनों आर्टेरियोल्स को, इफरेंट और एफरेंट दोनों को कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। ठीक है, दिस हेल्प्स टू मेंटेन द फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है,
Something you should remember that whenever there's low blood pressure and low sodium, the macula densa basically catches this और वो prostaglandins के थ्रू एफरेंट डायलेशन कराता है और जो रैस एक्टिवेशन है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्टिवेशन वो एंजियोटेंसिन 2 के थ्रू इफरेंट कंस्ट्रक्शन कराता है ये सब कुछ क्यों होता है ताकि जीएफआर आपका प्रिजर्व्ड रहे ठीक है इस ग्राफ के थ्रू हम क्या देख रहे हैं कि जो अर्ली किडनी डिजीज होती है वो बहुत साइलेंट होती है बहुत स्मॉल क्रेटिनिन चेंज होता है लेकिन जो लेट डिजीज होती है उसमें क्रेटिनिन राइज बहुत स्टीप होता है दिस इज व्हाई सीकेडी इज ऑफन साइलेंट अर्लियर ठीक है अब हम जाते हैं देखते हैं इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड वाई पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड क्योंकि ये फ्रीली फिल्टर्ड होता है और स्ट्रांगली सिक्रीटेड होता है ऑलमोस्ट 100% इज एक्सक्रीटेड इन जस्ट वन पास ठीक है तो इसलिए